صدارتی تقریر کے لیے میں جناب قومی صدر آئیٹا شیخ عبدالرحیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا صدارتی خطاب پیش کریں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت بنیادی احکامات کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان لانے والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے۔ آگے بہت سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں لاکھوں درود و سلام تاجدار نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسٹیج پر تشریف فرما سنوبر اسکول کے ڈائریکٹر، سنوبر اسکول کے ٹریزرر، سنوبر اسکول کے ایڈمنسٹریٹر، کرسپونڈنس، نالج کیئر اسکول کے ڈائریکٹر اور ہمارے رہنما، آپ سبھی سرپرست حضرات اور پیارے پیارے بچوں اور اسکول کے ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف، تمامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے تقریباً 2 گھنٹوں سے آپ یہاں پر اپنے نونہالوں کا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اور میرے ساتھ میں نے جو محسوس کیا، میرے ذہن میں اسی وقت ایک احساس زندہ ہوا، وہ یہ کہ ان بچوں کا مستقبل دیکھتے دیکھتے مجھے میرا سابق یا ماضی یاد آیا، اور میرا یہ احساس ہے کہ ہم میں سے ایسے کئی سرپرست حضرات، ہماری بہنیں بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ یاد کہیں نہ کہیں تازہ ہوئی ہوگی۔ محترم حاضرین، ایک بات تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے تھے، بچوں کا پرفارمنس دیکھنے کے لیے، وہ جستجو ہم میں تھی۔ بہرحال ان سارے معاملات میں آپ نے اپنے نونہالوں کا بغور جو ہے نظارہ یہاں پر محسوس کیا ہے۔ چلتے چلتے آخر میں ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ذمہ داری کی حیثیت سے جب لایا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ سنانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں سن لینا پڑتا ہے، اور بولنے والے کے لیے یہ آزمائش کا دور ہوتا ہے کہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، تازہ دم ختم ہوتا ہے، اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بہرحال کچھ فارمیلٹیز کے ساتھ میرے احساسات میرے اور آپ کے تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے میں یہاں پر تازہ کرنا چاہتا ہوں اس قرآن کی آیت کے حوالے سے۔ ہم لوگ ویسے تو جس ایج میں بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، کہ ہر کوئی انہی بچوں کی ایج سے ہو کر ہم آئے ہوئے ہیں، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اور آپ ہی کیا، اس دنیا کی کوئی بھی مخلوق جن مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، اس کے میں سمجھتا ہوں 4 مراحل عمومی طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ابھی تک 3 مراحل کا ذکر بار بار سنا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو خواتین ہو۔
3 मराहिल का जिक्र आपने सुना होगा इस जिंदगी के, मैं 4 मराहिल का जिक्र यहां पर करना चाह रहा हूं। पहला मरहला होता है बचपन का, दूसरा मरहला होता है लड़कपन का, तीसरा मरहला होता है जवानी का, और चौथा मरहला होता है बुढ़ापे का। इसमें बचपन का मरहला जो होता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि बचपन खुद के लिए होता है। बचपन में हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी कराने की हिम्मत होती है। हालांकि हम बोलते हैं कि बचपन में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बचपन ही होता है जो अपने जिद के जरिए से, अपने इसरार के तौर पर अपने बहुत सारी चीजें मनवा लिए जाते हैं। बचपन में बचपन का एहसास नहीं होता है, बड़े होने के बाद बचपन का एहसास होता है। उसके बाद का दौर आता है लड़कपन का। लड़कपन में कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कुछ तरक्की होती है, कुछ प्रोग्रेस होता है, कुछ अच्छे इक़दामात होते हैं, अच्छे ख्यालात आते हैं, कुछ गलत ख्यालात भी रहते हैं, कुछ गंदे इक़दामात भी निकलते हैं। अब ये दौर बहुत अहम होता है जो बचपन और लड़कपन को साथ में मिलाकर कि एक बहुत अहम अंदाज में उसको रुख देने के लिए। जाहिर है छोटा पौधा एक स्टेज तक आए तक उसको हम बहुत मुख्तलिफ मौकों पे अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग तरीके से शेप देने की कोशिश करते हैं, और जैसा उसको उसमें शेप दिया जाएगा वैसे ही वो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही मामला ये बचपन और लड़कपन का होता है। वहां से जब बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं लेकर चल रहा हूं, वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मरहला आता है जवानी का। ये जवानी जो है ना, आम जबान में जिसको कहा जाता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत दीवानी होती है, बहुत दीवानापन होता है। क्यों? कि इस जवानी वाले एज में, इस उम्र में हमसे कई तवक्कात बांधे जाते हैं। तवक्कात कौन मानते हैं? हमारे अपने वालिदैन, हमारा अपना समाज, हमारा अपना मोहल्ला, हमारा अपना मुल्क, हमारा अपना मुल्क, ये भी तवक्को बांधता है। आप देखिए कि किसी भी मुल्क की जो भी पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी मेन जवान लोगों को सामने रखकर बांधी जाती है, और उस जवान की एज जिस पर मुल्क का भविष्य निर्भर होता है, मुस्तकबिल मुनस्सर होता है, उस मुस्तकबिल को सही लाइन लेन देने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेंट जो लोग अदा करते हैं, मुतहर्रिक रोल जो अदा करते हैं, वो जवानों का रोल होता है। और उस जवानी की एज समझी जाती है 18 साल से लेकर तकरीबन 59 साल तक। उसके बाद गवर्नमेंट की नजर में भी फिर चौथा मरहला होता है बुढ़ापे का, बुजुर्गियत का। अब वहां पर भी जब जाएंगे तो वो बाज मामलात में बुढ़ापा और बचपन, इसको मसावी अंदाज में ताबीर किया गया है, एक साथ बताया गया है। क्योंकि बुढ़ापा या बुजुर्गियत जो होती है वो एक एज लिमिट के बाद वहां पर जाती है। इन 4 मराहिल में अगर आप देखेंगे तो बाज मौकों पे हमसे कोताहियां होती है, गलतियां होती है, अच्छाइयां भी होती है। सोचने समझने के मामलात में हम बहुत दूर हैं। हम लोग बड़ी बातें भी नहीं करते, बातें हमारी बस कुछ ऐसी होती है, चाहे ईरान तुरान की भी कर ले, लेकिन एक लेवल मेंटेन होता है। हम अपने घर, अपने बच्चे, अपने औलाद के सिलसिले में बहुत कम सोचते हैं, बड़ी गुफ्तगू भी नहीं करते हैं। बड़े ख्वाब ना हम देखते हैं ना बच्चों को बताते हैं। हाँ, ख्वाब देखते हैं कब? सुबह फजर के मौके पे, जो फजर को गायब करने वाले हैं। ख्वाब देखते हैं कैसे? जो दोबारा हमको ओढ़ ओढ़ कर सोने पे मजबूर करते रहते हैं। किसी अगर वो ख्वाब देखते हो, किसी ने कोई ओढ़ना रज़ाई वगैरह खींच लिया, तो वो टाइम पे हम टेंशन में आते हैं, वो ख्वाब देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ख्वाब देखने के लिए कहा, और वो भी ख्वाब में ये बात कही कि छोटा ख्वाब देखना भी ये गुनाह है, गुनाह। ना हम ख्वाब देखते हैं, ना बच्चों को ख्वाब दिलाते हैं। क्यों नहीं हो सकता? इन बच्चों में से दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं निकल सकता? इन बच्चों में से दूसरा अजीम प्रेमजी नाम का कौमी खिदमतगार क्यों नहीं निकल सकता है? इन बच्चों में से कोई दूसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद क्यों नहीं निकल सकता है? क्यों नहीं निकल सकता है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम को इस एज में थे जब ये मालूम था कि वो शहरी अव्वल भारत के बनेंगे?
मालूम था? नहीं था मालूम उनको, लेकिन उन्होंने उनके तजुर्बात से ये बात हमारे सामने रखी है कि ख्वाब देखिए, देखना चाहिए हमको ख्वाब देखना चाहिए। हमको बच्चों को बोलना चाहिए, बेटा तुमको खाली अपने स्कूल में फर्स्ट आना नहीं है, तुमको पूरे तेलंगाना में टॉप करना है, पूरे तेलंगाना में टॉप करना है, इंडिया में टॉप करना है। क्यों नहीं बोल सकते? कोई गुनाह है बोलना? शरीयत में कोई ममनू है? दीन में कोई नुकसानदा है? समाज में कोई बुरा है? कोई नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? जब हम बच्चों को ये क्यों नहीं पूछ सकते हैं कि बहुत अच्छा लीडर जो है सिर्फ यहाँ का अपने मोहल्ले का नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट को लीड करने वाला लीडर चाहिए, जब जाकर यहाँ के स्कूल्स, एजुकेशन, सेहत, ये सारी चीजों के हद तक अच्छा मामला हो सकता है। ये हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये नहीं बोलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों की तालीम यानी कोई डिग्रियां अगर से ले ले तो डिग्रियां हासिल करने के बाद वो बहुत अच्छा हो जाएगा और उस तालीम के नजरिए में हमको जन्नत मिलेगी, ऐसा नहीं है। आज पूरे भारत का, आप भारत की तारीख उठा लीजिए या हाल पर भी गौर कर लीजिए, जितने घोटाले हो रहे हैं, और एक नाम अगर मैं यहां पर लूं तो आप भी आजू बाजू मत देखिए क्योंकि हम उसमें नहीं है। ईडी का नाम जहां पर भी होगा तो लोग पहले देखते हैं आजू बाजू। मुझे बताइए, ये ईडी में जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, घोटालों में जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, कि वो अनपढ़ है, वो जाहिल है, वो गंवार है? उनका रिकॉर्ड देखिए, वेल क्वालिफाइड है वो लोग, बड़े बड़े डिग्री होल्डर है वो लोग। वही नहीं, 10-10 लाख का सूट पहनते हैं लोग, 10 लाख का सूट पहनते हैं और लाखों लोगों को हवा पे छोड़ देते हैं, उनको कपड़े तक मैसर नहीं है, वो भी कोई कम नहीं है। क्या हम लोग सिर्फ ऐसी तालीम में हमारे बच्चों को डालना चाहें? नहीं, हमारा काम तो यह है कि अच्छी तालीम और तरबियत अगर हमारी ना हो तो फिर हमारे लिए यही बच्चे कल वबाले जान बनकर आएंगे। चाहे ये कामयाबी आखिरत, सिर्फ दुनिया की कामयाबी हमारे पेश नजर नहीं है। अगर बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत इस हदीस की रोशनी में आप गौर करेंगे तो ये तालीम तरबियत पर हम तवज्जो देंगे तो ये हदीस जिंदगी जीना सिखाती है, जिंदगी जीना सिखाती है, जिंदगी गुजार देना नहीं सिखाती है। जिंदगी तो गुजर रही है, जो दुनिया में आए हैं कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी, हर हैवान की जिंदगी गुजर रही है, लेकिन हम बैसियत उम्मती, अल्लाह के बंदे, इस्लाम के नाम लेवा, खुदा के खलीफा, हम लोग जिंदगी गुजारे नहीं, जिंदगी जिएंगे। जो इस जिंदगी पर हमारी वो जिंदगी मुनस्सर होगी। चाहे कोई कुछ भी कंकर मारे, हमारा अपना एजेंडा सेट रहता, हमारा अपना प्लान सेट रहता। किसके लिए? हमारे अपने मिल्लत के लिए, हमारे अपने कौम के लिए, हमारे हरदिल अजीज ये भारत के लिए। ये मुल्क हमारा है, ये हमारे मुल्क अजीज भारत के लिए, इसको तरक्की पर ले जाने के लिए, इसमें अमन अमान कायम करने के लिए, इसको हर लिहाज से पसमानदगी से बाहर निकालने के लिए, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे सबका एजेंडा होना चाहिए। और ये एजेंडे के लिए आज ही से अगर आप इनको देखकर ख्वाब बांधेंगे, इनको देखकर ख्वाब बांधेंगे तो जब जाकर 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपको वो ख्वाबों की रूपरेखा वहां पर नजर आएगी और आगे चल के फिर वो आपको ख्वाब की ताबीरों की नजर में वो मंजिलें समझ में आएगी। वरना अब देखिए कि जो भी हम तालीमी लिहाज से पीछे रहे होंगे, कभी कभी जानबूझकर या कभी कभी अनजाने में हमारी जबान से ऐसे जुमले निकलते हैं, क्या किया हमारे वालिदैन ने हमारे लिए, क्या हमको पढ़ाया, क्या उन्होंने क्या रखा उन्होंने हमारे लिए। जिनके पास रखा है वो लोग भी परेशान हैं, करोड़ों अरबों रुपए जिनके पास रखे हुए हैं वो लोग भी परेशान हैं, जिनके पास नहीं है उनकी भी शिकायत है, और जो बहुत पैसे वाले हैं वो लोग बेराह रवी में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वो वालिदैन के लिए अजाब नहीं है? अजाब नहीं है? और जो बहुत गिने चुने लोग, इल्ला माशाअल्लाह, हमारे पास आज भी ये चीज बाकी है कि इल्ला माशाअल्लाह जो लोग कि ये प्रॉपर्टी, ये दौलत, ये शोहरत जो झूठी
ہے وہ उस शोहरत के पीछे ना लगते हुए एक किरदार साजी के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, सोशल बिल्डिंग के लिए, हमारे अपने पूरे समाज और इस भारत के सरजमीन को एक अच्छा सा खूबसूरत सा माहौल यहाँ पर बनाने के लिए उस कैफियत में जिन लोगों को बनाते हैं वो आज कम तादाद में है, लेकिन दीवानावार वो लोग जो लगे हुए हैं। हमको अगर हम लोग भी आज ये नहीं करेंगे, कितने लोगों ने पूछे आज तक बेटा तुमको क्या बनना है, उन्होंने कहा ये बनना है, ये नहीं तुम ये बनो, इस लेवल के बनो। आप अगर आदिलाबाद में तबीयत आपकी खराब होती है, किसी डॉक्टर को ढूंढते हैं तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। आप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा क्यों नहीं सोचेंगे? फिर हमारे बच्चों के सिलसिले में तालीम और तरबियत को अच्छे से अच्छा क्यों नहीं सोचेंगे? और ये अगर से हम नहीं करेंगे, ये करेंगे तो यकीनन आपके लिए यही बच्चे होंगे जो आपके लिए सदके जारिया रहेंगे, सवाब जारिया रहेंगे। हो सकता पैसों की शक्ल में ना हो, लेकिन लोग जब आपको चलते हुए देखेंगे कि अरे वो अच्छा काम जो किया ना फलां साहब का बेटा है, वो फलां साहब की बेटी है, वो फलां साहब के फर्जंद है, वो उनकी दुख्तर है, इन्होंने अच्छा काम किया। घर में रहने वाली बच्ची, पूरे घर को लेकर चलने वाली अच्छी बच्ची फलां साहब की बच्ची। ये जो अल्फाज निकलेंगे ये सवाब जारिया की शक्ल में निकलेंगे। और अगर हम तालीम और तरबियत, ये दोनों चीजें तालीम और तरबियत पर तवज्जो ना देते हुए अगर खाली डिग्रियों तक उसको हम लेकर चले या सिर्फ दुनियावी हालात में सोचे तो लाखों करोड़ों भी लिखेंगे। आपका बच्चा 10 लाख का सूट भी पहन लेगा, लेकिन 10 लाख लोगों की गालियां भी खाएगा। उस गालियों के नतीजे में होगा ये देख रहे हैं आप लोग। मैं इशारों में जो बात बता रहा हूं मैं समझता हूं आप समझ रहे हैं कि ये हो रहा है और लोग जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिक्टेटरशिप के सामने झुक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सिलसिले में बदगुमानी भी है और जो उनके लिए बिल्कुल वबाल जान बनी भी होती है। ये आप आपके अतराफ आपके शहर में भी ढूंढ सकते हैं, ऐसे लोग स्टेट में भी ढूंढ सकते हैं और पूरे मुल्क में भी ढूंढ सकते हैं। हम मुल्क की बात भी सोचेंगे, मुल्क की बात भी करेंगे। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, ये हमारे घर का मुस्तकबिल है, ये हमारे इस्लाम का मुस्तकबिल है। ये बात समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन ये चीज होगी। और अगर ये चीज नहीं आएगी, हम तालीम और तरबियत पर अगर से गुफ्तगू नहीं करेंगे तो आखिर में जिस तरीके से आज हम हमारे जाने अनजाने में हमारे वालिदैन के सिलसिले में मायूस का इजहार करते हैं, कल यही बच्चे हमारे सिलसिले में जिल्लत का, रुसवाई का, बदनामी का, मायूसी का सामान बने। और इसके लिए कोई जादू नहीं है, बस जो चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं आपकी अच्छी तवज्जो है, आपकी अच्छी तवज्जो है, आपकी नेक तमन्नाओं के साथ हरकत है और आपकी बड़ी सोच है, ऊंची सोच है, ऊंचे ख्वाब है। देखकर देखिए, आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप ये 2 दिन 4 दिन 8 दिन में रमजान से पहले अपने बच्चों के साथ बैठकर गुफ्तगू कीजिए और उनको अच्छा ख्वाब बताइए, अच्छी चीज सोचिए, क्या नुकसान होता है वो देखिए। अगर किसी का कोई नुकसान अच्छा ख्वाब देखने से होता है, उसकी गुफ्तगू करने से होता है, तो इस्माइल सर, अलीम सर से मिलकर बोलिए उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे अल्लाह की जात से उतनी ही उम्मीद है जितना कि सूरज निकलने पे उम्मीद है। ये उम्मीद है कि आप उनके साथ बैठकर उनमें वो ख्वाब बेदार करेंगे तो हो सकता है कि वो वहां तक पहुंचने के बजाय उसके करीब पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज वो हदीस के मुताबिक इन्नमल अमालु बिन्निया, कि हम जिस तरीके की नीयत करेंगे अल्लाह ताला उस तरीके के हमारे साथ फैसले करेगा। वो नीयत का अजर तो हमारा शुरू होगा, इरादे का अजर तो हमारा शुरू हो जाएगा। तो हम इरादे और बहुत सारी चीजें दूसरे मामलात में करते हैं, पैसों की कमी नहीं है। आज अगर आप आदिलाबाद का सर्वे कर लें तो आपके मुकाबले में दिगर अक़वाम जितने अखराजात अपने करती है उससे कई गुना ज्यादा, जितना वो कमाती है और जितना खर्च करती है उससे कई गुना ज्यादा आप खर्च करते हैं। कमाते कम होंगे, खर्च उससे ज्यादा करते हैं। लेकिन सिर्फ मसला यहां पर है कि वो प्री प्लान खर्च करते हैं, आप विदाउट प्लान खर्च करते हैं। आप प्री प्लान खर्च कीजिए।
प्री प्लान काम कीजिए, प्री प्लान सोचिए और आगे की सोचकर एक अच्छे ऊंचे हमारे इस मुल्क की ताबीर, हमारे इस भारत की तकमील, भारत की तामीर, इसके सिलसिले में सोचिए। और फिर उसके मामलात में जब आप ख्वाब देखेंगे, बच्चों को टारगेट बताएंगे, तो वहां पर कोई भी बात आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि आप रिएक्शनरी नहीं है, आप एक्शनरी है। और ये काम सिर्फ आपके हद तक नहीं, बल्कि हमारे मिलने जुलने वाले हमारे समाज के दिगर लोगों तक भी ये बात को आपको फैलाना पड़ेगा। और इसके बाद जाकर कहीं हम ये ख्वाब देख सकते हैं कि हमारे इन नौनिहालों का मुस्तकबिल, हमारे ख्वातीन की हिफाजत, इनके हिजाब की हिफाजत, आपके तालीम की हिफाजत, आपके पैसों में बरकत, आपके सेहत में बरकत, आपके अमाल में साले, आपके नियतों में अच्छाइयां, इस सिलसिले में फिर जो अल्लाह ताला के फैसले आना शुरू हो गए इंशाअल्लाह। वो दिन फिर दूर नहीं है कि जिसका वादा भी यहां पर किया गया है कि इस्लाम, ये रोशन मुस्तकबिल इस भारत का होगा। और ये भारत का इस्लाम के माने जो सलामती अमन वाला है, ये आज के हालात तब्दील होके हमारा भारत यहाँ के तमाम तबकात को साथ में लेकर चलने वाला, तमाम के तहफ़्फ़ुज़ देने वाला, तमाम को तरक्की पर पहुंचाने वाला, ये हमारा भारत होगा। इसके लिए हम सोचेंगे, हम ऊपर उठ के सोचेंगे। मैं समझता हूं ये गुफ्तगू जो यहाँ पर मैंने रखी है, ये तमीदन सिर्फ आप ही के लिए नहीं, बल्कि मैं मेरे अपने लिए भी इसको रखूं और आप सब हजरात के सामने ये तस्किरन ये करूं, इसलिए गुफ्तगू यहाँ पर मैंने रखी है। अब वो वक्त जिसके लिए आप सभी इंतजार भी कर रहे हैं, और आपसे ज्यादा ये बच्चे जिस इंतजार में बैठे हुए हैं, उनके तक़सीम इनामात का मरला यहाँ पर होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सोचने समझने वाली इस तादाद में दिन दुना रात चौगुना जो है इजाफा फरमाए, उनमें तरक्की फरमाए, और उनमें खास तौर पर इन बच्चों को, इस बच्चों के साथ साथ अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खास तौर पर कोशिश करने वाला बनाए। अल्लाह ताला आने वाले रमजान हम सभी के लिए बहुत कारामत बनाए। गुजरे हुए दिनों में जितने लोग हमसे गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भर दे, और उनकी जो भी अच्छाइयां रही है वो अच्छाइयों का सिलसिला हमसे जोड़ दे, और हमसे ऐसे काम ले जो हमारे लिए सवाब जारिया साबित हो। वाह खुदावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंडिया समय पर मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए आप लॉग इन कीजिए हमारे वेबसाइट www.indiasamay.com। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @indiasamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।